Delhi yet again has been ranked a city with highest pollution. Due to poor air quality across India, एक बहुत common health concern है breathlessness. Breathlessness can be a very scary experience, leaving you gasping for air and wondering ये हो क्या रहा है. Joining us today is Dr. Sameer Garde, a distinguished interventional pulmonologist, a director of Department of Pulmonology, Interventional Pulmonology and Lung Transplant at Gleneagles Hospitals, Mumbai. Dr. Garde is a beacon of knowledge in the field of pulmonary healthcare who will help us navigate causes, diagnosis and management of the common yet concerning symptoms. Namaste and welcome everyone to Beyond the Pill where health meets conversation. I am your host Dr. Chetna and today we are diving into a topic that affects people of all ages and gender, that is breathlessness. Breathlessness यानी सांस लेने में दिक्कत महसूस करना. Hello doctor, welcome to Beyond the Pill. So, doctor, just in simple terms, can you tell us what is breathlessness and how is it different from shortness of breath? Thank you so much for calling me to your program. I have seen few of your podcasts and they're very informative. In medical terminology, breathlessness is abnormal, uncomfortable awareness of one's own breathing. Okay. अगर ये सुनने में काफ़ी हेवी लग रहा है तो सादे से शब्दों में ऐसा है कि जब हमें हमारा ब्रीदिंग पता ही नहीं चलता, इतना ऑटोमेटिकली वो होते रहता है, राइट? हम पलक झपकाते हैं, हम सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. लेकिन जब पता चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, वो एबनॉर्मल और अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है उसको कहा जाता है ब्रेथलेसनेस. And shortness of breath is just another terminology for breathlessness. Breathlessness is close to medical terminology. उसका medical term dyspnea है. Dyspnea मतलब breathlessness. Shortness of breath. हाँ, so shortness of breath is a lay person will come and tell you, Okay. doctor, I'm feeling short of Okay. breath. It means breathlessness only, and that is a abnormal, uncomfortable feeling of one's own breathing. Okay. Just to give you an example, आप suppose तीसरे माले पे रह रहे हो और आप रोज़ ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपके लिए वो रूटीन है. सपोज़ मेरे लिए वो रूटीन नहीं है और मैं आपके घर पहुंच गया चाय पीने के लिए और 3 माला में चढ़ के ऊपर आ गया, तो मुझे थोड़ा ब्रेथलेस फील होना नेचुरल है, हो सकता है. नॉट एवरीबडी वुड फील, बट येस इट इज़ नेचुरल इफ आई फील इट दैट वे. बट इफ देर इज़ एनी पैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ इट, देन येस वी हैव टू लुक इन टू इट. ओके, सो ये जो ब्रेथलेसनेस है इसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सो एज सच तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बियॉन्ड हार्ट एंड लंग. तो वो जो पूरी लिस्ट है उसमें एनीमिया से लेके हाइपोथायरॉयडिज्म से लेके, अगर हम सिंपली फिजियोलॉजिकली कहा जाए तो हम अगर माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं और हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं तो भी आपको ब्रेथलेस फील हो सकता है, बट दैट इज फिजियोलॉजिकल. दैट इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन. That is not a medical. Sometimes pregnant women, they also feel breathless. That is simply because the size of the uterus is growing and the area for expansion for the lung is obviously becoming little less because of the expanded uterus. तो ये भी एक physiological चीज़ होगी. लेकिन अगर हम सिर्फ cardio respiratory breathlessness and especially me being a chest physician, a respiratory specialist, we will then focus on only respiratory reasons of breathlessness. But कोई भी कार्डियक रीज़न, जैसे कि किसी को अगर हार्ट अटैक आके गया है और उसके वजह से अगर हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हो गया है तो उसके चलते लंग्स में पानी जमना, ये एक ब्रेथलेसनेस का रीज़न हो सकता है. अगर वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ है, मतलब हार्ट के वाल्व्स में अगर गड़बड़ है तो ब्रेथलेसनेस फील हो सकता है. ये बहुत ही मैंने कुछ ग्रॉस एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कार्डियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू वी डिवाइड देम इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव. अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को इमेजिन करते हो तो अगर किसी पेड़ को जिसको काफ़ी सारे ब्रांचेस है आप उल्टा कर दो तो जैसा उसका एनाटॉमी दिखेगा वैसा हमारा एनाटॉमी है कि नाक से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होती है, अपर एयरवेज, ये मेन ब्रीदिंग पाइप, और दोनों तरफ के जो अपने फेफड़े हैं उनके जो ब्रांचेस है, दैट होल थिंग बिकम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. उन ब्रांचेस में अगर वो नैरो हो रहे हैं तो उनका डायमीटर कम हो रहा है तो उसमें से हवा ठीक से बह नहीं रही है करके जब भी ब्रेथलेसनेस होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, राइट, एयर फ्लो के लिए. एंड उन ब्रांचेस के बियॉन्ड अंगूर कैसे रहते हैं वैसे छोटे छोटे हम अल्वियोला है कहते हैं उसको, एयर सैक्स, देयर आर मिलियंस ऑफ देम. मतलब अगर हम एक एक उस एयर सैक को खोल के और एक एक ब्रीदिंग ट्यूब को खोल के दोनों लंग्स को अगर हम किसी सरफेस पे अगर बिछा सकते हैं तो लॉन टेनिस कोर्ट जितना उसका एरिया है. My God. So we are literally carrying a surface area of lawn tennis court
इन आवर Oh. चेस्ट. उन एयर सैक्स में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर. तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव इस दो तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं. But then if someone is facing breathlessness, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो breathlessness is due to any lung disorder or any heart disorder? So first of all, such a patient should obviously come and consult a doctor, be it a family physician, MD chest जैसे हम हैं, या कोई MD physician भी है, उनके पास अगर पहले पहुंच जाए तो. बट घर पे ही अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किस लिए मुझे हो रहा है, मैं किसकी तरफ जाऊँ. काफ़ी बार ऐसा होता है कि ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है करके लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहले पहुंच जाते हैं. जी. वहाँ पे सब चेकअप हो जाता है कि कार्डियोग्राम कर लिया या इकोकार्डियोग्राफी कर लिया वगैरह वगैरह, और सब नॉर्मल आ जाता है. लेकिन पेशेंट की तकलीफ तो दूर नहीं हो रही है. फिर वो चेस्ट फिजिशियन के पास चला आता है एंड फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो एज अ बेसिक यू कैन से अ ग्रॉस गाइडेंस टूवर्ड्स वेयर टू गो. अगर ऑर्थोपनिया मतलब सोते वक्त आप बेड पे रात को लेट गए हैं एंड आपको बहुत ब्रेथलेस होकर उठना पड़ रहा है, दैट इज़ क्लासिकल कार्डियोलॉजिकल, इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोपनिया. उसके साथ में अगर पैर में सूजन है या आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है वगैरह, या कभी कभी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर वालों को किडनी तक की भी तकलीफ होती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसे कहते हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तो उसके चलते भी लंग्स में पानी जम के ब्रेथलेस हो सकता है. एंड अगर ब्रेथलेसनेस इज एसोसिएटेड विद चेस्ट पेन, देन जनरली इट गोज इन फेवर ऑफ अ कार्डियोलॉजिकल कंडीशन. तो एक ग्रॉस एग्जाम्पल हो गया. रेस्पिरेटरी में काफ़ी बार कॉफ इज एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस. सो कॉफ इज अ यू कैन से अ मेजर सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट ऑफकोर्स दे आर ऑल वेरी मच इंटरचेंजेबल, बिकॉज लंग में जब पानी भरना शुरू हो जाता है किसी कार्डियक कंडीशन की वजह से, तो कॉफ ये पहला सिम्टम हो सकता है. तो ऑफकोर्स ये डॉक्टर का ही काम है, स्पेशलिस्ट का, कि उसको क्लासीफाई करे और डिसाइड करे कि क्या है. बट ग्रॉसली दिस इज समथिंग दैट वन कैन अंडरस्टैंड. सर बट देन ये जो ऑर्थोपनिया है या फिर ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, व्हाट आई एम रीडिंग इज दैट पोस्ट कोविड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है. इवन इफ द पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी लंग कंडीशन और हार्ट कंडीशन, स्टिल जो उनको डेली एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करना है उसमें दिक्कत आने लगी है. व्हाई इज़ इट लाइक दैट? आई थिंक इट्स मोर लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग. सो पोस्ट कोविड जो भी तकलीफ़ें थी वो उसी दौरान की थी. अगर किसी को सीवियर कोविड हो चुका है 2020 या 2021 में, तो या तो वो लोग पूरी तरह से ठीक हो गए या फिर दे सकम टू देयर लंग कंडीशन. आपने काफ़ी सारे पढ़े भी रहेंगे केस रिपोर्ट्स या न्यूज़पेपर में या मेडिकल मैगजीन्स में भी आ चुका है कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस वाज अ प्रॉब्लम. यस. But 99% of the time it improved with proper therapy. 1% of the time those patients did not make it, they passed away. And there is a very small minuscule percentage of patient, 99% वालों में से, जिनको कुछ पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस बचा होगा. मेरा ख्याल ऐसा है कि काफ़ी बार कोविड होने के बाद कोविड का उस 2 साल का जो एक तरह का फोबिया लोगों में था, people are relating every symptom to COVID. This is what my experience, I feel it that way. लोगों को पहले भी सिम्टम्स थे जो इग्नोर कर रहे थे. कोविड के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में या छोटे छोटे इन सिम्टम्स के बारे में दे हैव बिकम मोर अलर्ट एंड दे शुड टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, बट दे शुड नॉट कोरिलेट इट विद कोविड. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉफ वेरिएंट एस्थमा. काफ़ी लोगों में सीजनल चेंज पे खांसी होती है जो जल्दी जाती नहीं है, फिर 2-4 हफ्ता कुछ दवा लेते हैं, ये वो टैबलेट सिरप, चली जाती है. ऐसा साल में 3 बार होता है. One fine day that turns into proper breathlessness, that is asthma. And then they will feel, if they have started with this breathlessness now, they will feel कि अरे कोविड के बाद मुझे ये शुरू हो गया है. So it's all in the mind. I'm not saying it's in the mind, it is there in the system, but they are unnecessarily correlating it with COVID. If you dig back into the history of such a patient, you will see that they have had this in 2016, 17, 18, 19 also, when there was no COVID. They just ignored तभी. Yeah, the symptoms were ignored. They were not really paid attention to. And now when they are coming to a chest, अच्छा अभी alertness भी बढ़ गया है कि इसके लिए chest physician के पास जाना है. Unfortunately, a COVID had to come for people to understand that there is something called as a respiratory physician or a chest specialist to whom they should meet. But nonetheless, yes, the awareness is there and then they come. And it is easily diagnosable by certain tests. I guess we'll discuss yes, about that yes. when we... So we all have
heard about heart attacks commonly. But then today, can we talk more about asthma attack or what is a COPD attack? Now, thank you for asking me that question. So, initially we discussed about those obstructive type of lung disorders. Correct, So, yeah. asthma and COPD both are obstructive type of lung disorder. Ji. The difference is asthma can run in the family, Okay. and so people can experience it since childhood, early childhood, any age for that matter. COPD is classically somebody either who has smoked for a long time and the symptoms manifest after he is 30, he or she is 30, 35, 40 years of age. So you don't call it COPD when a 15-year-old person is coming to you with breathlessness. That's not COPD. Okay. By history, I'm saying. COPD is generally in smokers or those who are exposed to indoor air pollution. We always knew that smoking causes problem. We'll talk about it separately. I want to talk Okay, about it little in okay, detail as we yes, go ahead. yes. But we use lot of mosquito repellents. We burn agarbattis, candles, this, that in the house, and we are exposed to that for number of hours, and that itself causes a lot of pollution which we do not understand. So indoor air pollution is a very known entity now. It was raised by certain Indian doctors since 2009, and the world has acknowledged it now. Previously, the indoor air pollution was always जो औरतें देहात में चूल्हे पे काम करती थी, तो चूल्हे के धुएं का जो एक्सपोजर था, उसके चलते बरसों अगर वो एक्सपोजर मिल रहा है तो लोगों को COPD हो रहा था. COPD मतलब chronic obstructive pulmonary disease. The difference, another difference is asthma is, you can say, as good as curable or 100% controllable. Asthma, if it is associated with allergy, it behaves sometimes in cycles. तो 5 साल के बच्चे को अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं अस्थमा के, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, वीजिंग हो रही है, तो उसको कुछ महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए इनहेलर वगैरह देके वो पूरी तरह से सेटल हो जाता है. Okay, it's completely curable. It's curable for that at that point of time. Then it disappears for 10-15 years. It will not come back. So any triggers that will worsen the condition? Yes, so pollens, for example, as I said, this indoor thing. Nowadays there is a lot of pets in the house. कुत्ता बिल्ली रखने का भी आजकल बहुत ही शौक है लोगों में. तो पेट डैंडर जो रहता है, उस डैंडर पे वो जो बाल रहता है उस एनिमल का, उसके ऊपर एक तरह का माइट रहता है, जंतु रहता है, जिसके एक्सपोजर से अस्थमा कैन गेट ट्रिगर्ड. सर्टन फूड्स विच आर हैविंग टू मच ऑफ कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट, समटाइम्स दे हैव अ एलर्जिक टेंडेंसी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ फूड एक्सेट्रा. बट 10-15 साल वो क्वाइट हो सकता है. फिर हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना 13, 14, 15 के बाद लड़के लड़कियों में, तो उस टाइम वापस सिम्टम्स दिख सकते हैं. वापस उसको 1-2 साल का ट्रीटमेंट करो, वापस 10-1 साल वो गायब हो जाता है. सो एट टाइम्स इट इज़ बिहेविंग इन साइकिल्स. Especially in women, you will see a start and stop of symptoms can either happen in early childhood, at the time of menarche, मतलब जब भी पीरियड शुरू होना होता है, फर्स्ट से प्रेगनेंसी या सेकेंड प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज. These are certain milestones in a woman's life where the asthma can begin or stop altogether. We still do not know exact reason ये hormonal changes किस तरह से ये कर रहे हैं, but moral of the story, asthma is 100% controllable entity, जिसके चलते आप कुछ भी, मतलब आप माउंटेनियरिंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर You सकते can हो. lead a normal life. Absolutely. We know umpteen number of cricketers, athletes, actors who are doing a lot of work the entire day. They are being very busy and still keeping fit. On the other hand, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, is a progressive disease thanks to the smoke or thanks to this exposure to pollutants, where once that unfortunate lung, destruction has started, then it progresses. You can halt it, you can try and stop it. In दोनों को diagnose करने के लिए there is something called as spirometry या pulmonary function test. Yes. It's a computerized breathing test जिसमें आप पेशेंट को कुछ ब्रीदिंग मैन्यूअर्स करने को कहते हो और कुछ ग्राफ्स और फिगर्स के अनुसार आप डिसाइड करते हो ये अस्थमा है, इनहेलर से कितना फ़ायदा हो रहा है वगैरह वगैरह. ग्रॉसली दोनों के लिए inhaled medications is the only treatment. That's the backbone of the treatment for both the ailments. At the same time, lifestyle changes, exercises, maybe all that we can discuss as we go ahead. Okay, so डॉक्टर हम लोग और थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं अबाउट द ट्रिगर्स जो COPD अटैक
को बढ़ाएंगे या और कंडीशन वर्स करेंगे? तो COPD ये टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले पीपल में पता नहीं है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो वाइल काउंसलिंग आई टेल माई पेशेंट्स ये अस्थमा का बड़ा भाई है। अभी किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ? बराबर। अभी हार्ट अटैक जैसा सडन होता है वैसा ये COPD अटैक जिसको हम लंग अटैक कहते हैं। So the chest physicians of India came out with this kind of a concept that let us call it lung attack. Then people will understand this is something to do with the lungs because there is no such terminology Yeah. where common people will understand what is going Right. on. तो अगर COPD, so COPD में वो gradually increasing symptoms रहते हैं। हार्ट अटैक जैसा कि अभी तो ये व्यक्ति अच्छा था और सडनली चेस्ट पेन हो रहा है, या ये जो तरीके का प्रेजेंटेशन रहता है वो COPD में नहीं रहता है। तो सर अगर ये ग्रेजुअली डेवलप होता है तो हाउ विल अ पेशेंट नो कि अब ये मेडिकल इमरजेंसी है और अब मुझे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? करेक्ट। सो अगर COPD डायग्नोस्ड है आपका, जैसा हमने कुछ वक्त पहले डिस्कस किया कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके हमें डायग्नोस करना होता है, उसमें डायग्नोसिस हो गया, आपके डॉक्टर ने आपको कुछ इनहेल मेडिकेशंस चालू करके दिए हैं। तो COPD में कॉमनली सिम्टम्स आर कॉफ, स्पूटम प्रोडक्शन एंड ब्रेथलेसनेस। इफ़ दीज आर इंक्रीजिंग, आपको मालूम है आपके बेसलाइन सिम्टम्स क्या है, वो हर एक पेशेंट को अपना बेसलाइन सिम्टम्स पता रहता है। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू सम टाइम बैक दैट इन बिटवीन अस्थमा प्रॉब्लम पेशेंट इज एब्सोल्युटली 100% फाइन, उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही होती है। लेकिन COPD में पेशेंट कभी भी 100% नॉर्मल नहीं फील करता है डिस्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। उसमें कुछ ना कुछ बेसलाइन सिम्टम्स उसके चालू ही रहते हैं। तो उससे पता चलता है कि अपना कॉफिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मेरा स्पूटम जो वाइट आ रहा था वो अभी येलोइश या ग्रीनिश आ रहा है, या मुझे ये करने पे ब्रेथलेस हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मुझे ब्रेथलेस हो रहा था, लेकिन आज मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो भी मुझे ब्रेथलेस हो रहा है। So that person will know that his symptoms are worsening, and then immediately he has to rush to his chest physician or a nearby emergency room of any hospital. तो वहाँ पे फिर उनको नेबुलाइज मेडिकेशन देके, इंट्राविनस मेडिकेशन देके सेटल किया जाता है, एंड देन इफ रिक्वायर एंटीबायोटिक्स आर आल्सो गिवन एंड दे आर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। सो इन सच पेशेंट्स जिनको अस्थमा या COPD है, एज यू मैंशनड कि उनके लिए ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अस्थमा है, अगर वो फिलहाल डॉर्मेंट है लेकिन ऐसे कुछ ट्रिगर आ गया तो वो जी। अस्थमा फिर से रिलैप्स होने के चांसेस है। जी, सो जैसे पैसिव स्मोकिंग हो जाती है एब्सोल्युटली। अस्थमाटिक पेशेंट Yes. के लिए, क्या ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है? Yes. So as we discussed again, those exposure to animal dander, अगर खान पान में कुछ very heavily colored flavored कुछ खा रहे हैं, for example previously there used to be Ajinomoto in Chinese, that is one trigger for asthma. यस। Climate change, yes, it can be a trigger for asthmatics. तो उस तरह से yes, passive smoking can be a trigger. सर पहले तो आप ये समझाइए कि एग्जैक्टली पैसिव स्मोकिंग होती क्या है? तो उसके लिए पहले एक्टिव स्मोकिंग समझ लेते जी हैं। जी, उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ वेरी हैज़ार्डस थिंग। एक्टिव स्मोकिंग मतलब जो खुद व्यक्ति स्मोक कर रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, और अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ और आप मेरे बगल में हैं तो आप जो एयर इनहेल कर रहे हो वो पैसिव स्मोकिंग हो तो वो रही भी इक्वली हजार्डस ही है? इट इज़ इक्वली हैज़ार्डस। ओके। हर एक सिगरेट में बेसिकली निकोटिन रहता है। सिगरेट, बीड़ी, चिरूट, सिगार, हर एक Okay. के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनहेल्ड टोबैको आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें निकोटिन रहता है जो आपको एडिक्टेड रखता है उस चीज़ से। बट उस निकोटिन के अलावा देर आर 4000 डिफरेंट केमिकल्स इन एवरी सिगारेट और एवरी बीड़ी। उसमें से 300 केमिकल्स आर नॉन कार्सिनोजेंस। मतलब क्या कि इन 300 केमिकल से कुछ ना कुछ तरह का कैंसर शरीर में हो सकता है। ये पिछले 50-60 सालों से साइंस को हमें मालूम है। Now imagine a person who is smoking a cigarette, who finishes one cigarette in 10 puffs for example. तो एक पफ में एंट्री एग्जिट होगी 4000 केमिकल की। ऐसे 10 पफ की एक सिगरेट हो गई तो 4000 इंटू 10, और अगर ऐसे 10 सिगरेट हो रहे दिन को तो 4000 इंटू 10 इंटू 10, that is the entry of chemicals happening to your lungs. Okay, so nicotine keeps your brain addicted to that smoke, but what you're actually inhaling is very very hazardous chemicals. अभी पहले तो उसको छोड़ने के लिए कुछ दवा हुआ करती थी। there are certain molecules they were used, tablets basically, so that you develop a kind of aversion towards smoking. But फिलहाल अपने देश में तो फिलहाल भारत में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है।
So those who want to give up smoking, they have to do it what we call is cold turkey. बंद कर दो. 10 सिगरेट पी रहे हो, 20 सिगरेट पी रहे हो, बंद कर दो. These chemicals, they are not only affecting the lung. So right from आपने हम जब भी सिनेमा देखने जाते हैं, you must have Yes. seen those number of ads Yes, about yes, the very yes. scary, Yeah. very tragic thing to watch actually. Right from the tip of your lip or tongue till the airway, till the esophagus, it can cause cancer, which is known. Apart from that, it increases the viscosity of your blood, those chemicals. तो आपका blood का जो flow है वो थोड़ा slow हो जाता है और उसमें clots बनने के tendency आ जाती है. ये clots आपके heart के circulation में या brain के circulation में जाके आपको heart attack आ सकता है, stroke आ सकता है. Stroke मतलब paralysis. उसके अलावा unfortunately female smoking has also caught up. Yeah. We see around us, Yeah. which is really bad in terms of all these problems of COPD, cancers, etc. Plus not able to bear a child. मतलब infertility, primary infertility Is के issues आ रहे increasing, हैं. yes. अगर conception रह भी रहा है तो missed abortions हो रहे हैं. And if she is able to give birth to a child, then that at times child is born as an asthmatic. So it is not only the smoking person who is causing hazard to himself, but it's all around and also to the next generation, you know. So Yes. So nowadays I see this generation using vape a lot. yeah, So that is another issue. Yeah. So I'll tell you what the concept was कि ठीक है निकोटिन से आप you are hooked on to nicotine. ये बाकी केमिकल्स नहीं चाहिए ऐसा आप बोल रहे हो ना, तो चलो हम आपको निकोटिन ही दे रहे, तो बाकी हमने केमिकल्स निकाल दिए, तो ई सिगरेट का एक ये शुरू हो गया. बट उसमें जो फॉर्मल्डिहाइड या उस तरह के जो भी या फ्लेवरिंग एजेंट्स जो उसमें यूज़ किए जाते हैं, दे आर इक्वली हैजार्डस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड निकोटिन, राइट. सपोज समबडी स्टार्ट स्मोकिंग एट द एज ऑफ 18. जिंदगी के पहले 18 साल तुम्हें कौन सा निकोटिन लग रहा था जिंदा रहने के लिए? यू आर डूइंग फाइन, राइट. यू आर एक्सरसाइजिंग, you are playing whatever, some sport, you are dancing, you are following some kind of hobby. You did not need anything. So this is not needed. You do not need nicotine. it is first just of to all. look cool nowadays. Just to look cool, and I do not know what to call it, but smoking a cigarette or a bidi or all those things, hookah, and as well as this vaping are extremely bad for anyone's health. Right. So there is no argument on that. So can you tell us कि lifestyle modification से कैसे lung health को support किया जा सकता है, or any exercise which will help to alleviate breathlessness? Sure. Before addressing that, let me also address another problem which kind of we have not touched upon right now, because these exercises and everything will come in handy for all sorts of respiratory illnesses. There is something called as hypersensitivity pneumonitis. हमने एकदम शुरू में डिस्कस किया था ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव. तो ये रिस्ट्रिक्टिव में जो एयर सैक्स है उनको तकलीफ देने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं, पोल्यूशन इज़ वन ऑफ देम. बट एक्सपोजर टू अ सर्टन हैजार्डस केमिकल, नॉट आई एम नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग हैज़ इट्स ओन डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन लंग. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एक्सपोजर टू pigeon excreta. Exposure to pigeons, Yeah. that is pigeon feather and pigeon excreta, is a big menace. It can cause something called as hypersensitivity pneumonitis. मतलब लिटरली तुम्हारे लंग्स इन्फ्लेम हो जाते हैं. अगर आप नहाते वक्त कभी कभी आँख में शैम्पू या साबुन चला जाता है ना, तो आँख कैसी हो जाती है अपनी, तो उस एक्सपोजर के वजह से अपने लंग्स को लिटरली अंदर से सूजन आ जाती है. जितने भी एयर सैक्यूल्स है उसमें सूजन आके दे बिकम स्टिफ. द जॉब ऑफ द लंग, आवर लंग्स आर लाइक स्पॉन्ज. स्पॉन्ज कैसा रहता है? स्पॉन्जी. तो लंग्स भी हर ब्रेथ में खुलते हैं, दबते They हैं. absorb. वो स्पॉन्जीनेस लंग्स का चला जाता है. दैट स्पॉन्जीनेस इज नेसेसरी फॉर एयर एक्सचेंज. ऑक्सीजन लेना एटमॉस्फेयर से, शरीर में हर जगह पहुंचाना, और शरीर से हर जगह से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में फेंक देना. दैट इज़ द जॉब ऑफ द लंग. बट ये जब स्पॉन्जीनेस चला जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सच थिंग्स, समटाइम्स इट इज़ people working in chemical industry, sometimes people working, पहले तो हम उसको फार्मर्स लंग कहते थे. फार्मिंग में जो भी आप वो जो जितने भी अन्न के या धान के जो ये थोड़े से ये निकलते थे,
या पोलन्स के एक्सपोजर के वजह से, तो ये सब एंड पिजन एक्सपोजर. So according to my knowledge, they've been put under this interstitial lung disease wala Correct. You're category. absolutely right. So that is a medical terminology of So there are 150 types of interstitial lung disorders. So we have had patients who have been exposed to this and lungs damaged to such an extent where they had to undergo lung transplant, which we do it at Gleneagles Hospital in Mumbai. So when I do patients, I see lot of pulmonary patients who are going through pulmonary fibrosis. Correct. So pulmonary fibrosis is a terminology for lay people. Interstitial lung disease is a medical terminology. There are 150 different types of interstitial disorders in which this hypersensitivity pneumonitis is a part of it, which is preventable. So first of all, get rid of those pigeon exposure. Nowadays, there has been a high court ban on feeding pigeons in public places, or for Yes. that matter anywhere. I see building में बहुत fights होती है वो pigeon को feed करने की वजह से. There are religious reasons for feeding Yeah, pigeons, yeah. but whenever that had started, maybe few thousand years back, we did not face this issue. But now Correct, it is yeah. all, urbanization, crowding of people staying in crowded So areas. the problem is that कि वो pigeon की वजह से हो रहा है, but the family or the parents doesn't know कि बच्चे को वो pigeon की excreta के वजह से इतना respiratory issues हो रहे Absolutely हैं. right. Absolutely right. You're bang on. So that needs to stop. And then, of course, diagnose it with a pulmonary function test or a scan. Start with medication, consulting your chest physician. And now coming to this exercise part of it. So then there are deep breathing exercises and limb exercises that one needs to do first of all, under guidance of a physiotherapist. अभी exercises की तरफ आते हैं. तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड लिम्ब मतलब हाथ पैर के एक्सरसाइज एकदम ग्रॉसली कहा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ये पहले होना चाहिए. एक 8 सेशन हम हमेशा कहते हैं हमारे पेशेंट्स को कि फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में आप सीखो करो. लोगों को लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब लंग के एक्सरसाइज है. वो सिर्फ लंग के लिए नहीं है. अपने जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, सांस लेने के लिए जो मसल्स हमारे चल रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है अपने छाती और पेट के बीच में जो डायफ्राम रहता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी मसल है ब्रीदिंग का, जिसको हमें स्ट्रेंथन करना होता है. आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके ब्रीदिंग के मसल्स अच्छे होने चाहिए. प्लस हाथ पैर के एक्सरसाइज. क्यों? तो अगर किसी को COPD डायग्नोज हो गया है फॉर एग्जांपल, तो ये जनरली देखा गया है कि उनकी जो सेहत है वो एकदम लीन एंड थिन, वो इमेशिएटेड हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है. दैट पर्सन इज ओनली स्किन एंड बोन मोस्ट ऑफ द So ये obese patients में ज़्यादा नहीं देखा जाता है. बहुत कम. मतलब यू विल नॉट सी. ओबीस में अलग प्रॉब्लम है, दैट इज स्लीप एपनिया. सो दैट वी हैव नॉट टच्ड अपॉन, वी मे टॉक अबाउट इट मे बी लेटर. तो हाथ पैर के एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये COPD नहा रहा है और मग से बाल्टी से पानी उठा के नहा रहा है, तो उसमें भी वो ब्रेथलेस हो जाता है. So such people can't actually do high intensity workouts. They cannot. Okay. Once they are in a severe form of COPD. बट उनके लिए उनको शुरू से अगर फिजियोथेरेपी पे अगर हम रख दे, लोगों को क्या रहता है कि मुझे दवा दो और मुझे ठीक करो. Correct. एंड थैंकफुली it is very apt, the name of your program is very good, that beyond the pills, हम हमेशा कहते हैं कि your sickness is a doctor's responsibility, but your health is your responsibility. So to stay healthy is your responsibility. आपकी जिम्मेदारी है वो. तो हाथ पैर की एक्सरसाइज, तो लिटरली 1-1 लीटर की बॉटल होती है, उसमें पानी भर के या डम्बल्स लेके आइए, उससे एक्सरसाइज कीजिए. पैर के एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं, जिसमें कि चेयर से उठो और बैठ जाओ, ऐसा 10 बार करो. तो ये सबसे जो लोअर लिम्ब मसल्स है, अपने पैरों के मसल्स है, हाथ के मसल्स है, उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए. जो पूरा लोड हार्ट के ऊपर या लंग्स के ऊपर आ रहा है किसी भी एक्टिविटी के दौरान, वो डिसेंट्रलाइज होकर हाथ पैर को मजबूत करो, तो वो लोड लंग्स के ऊपर नहीं आएगा, वो हाथ पैर अपने आप उस एक्टिविटी को मैनेज कर पाए. So I would just like to add something that there is this very simple exercise called as ATMs, which are ankle toe movements. Okay. So I always tell my patients कि बहुत simple exercise है, but Correct. then बहुत important है, क्योंकि जो आपके calf muscles हैं, they are जी. actually the pumping muscles. करेक्ट. They pump blood from your lower limb towards your heart. सही बात है. तो सब जो भी pulmonary patients है या cardiac patients है, सबसे पहले important exercise we tell them that
ये आपको लगता है इजी है बट इग्नोर जी। करते हो, बट देन यू नीड टू गेट अप एंड डू दिस डू दिस, यस। एज इफ यू टेकिंग अ पिल। दोपहर को खाना खा लो और ये कर लो जैसे जी, दवाई की तरह, जी, रात को भी सोने से पहले ये कर लो। जी। ये बहुत ज़रूरी है और उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ता है बिकॉज सीओपीडी में आपकी तबीयत सेहत हमेशा ख़राब ही होने वाली है, तो उसको एक लेवल पे बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट या आपको अगर किडनी कंडीशन है, डायबिटीज़ है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट का की हेल्प लेके डाइट भी इस तरह से होना चाहिए कि आपके मसल्स को, रेस्पिरेटरी मसल को, लिम्ब मसल्स को, इन जनरल आपकी सेहत को अच्छा फ्यूल मिले, एनर्जी मिले, ताकि आप वो एक्सरसाइजेस कर पाए, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। So what about omega 3? I just read that omega 3 and fish especially जी, लंग हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। करेक्ट। तो ये बरसों से हमें पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्रूट, कोई भी 2 फ्रेश फ्रूट डेली खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं उसमें, जो लंग में जो भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, उनको वो इरेडिकेट कर देते हैं। तो येस, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश, एनी गुड, हमारा फॉर्चुनेटली हमारे देश में आप नॉर्थ से साउथ किधर भी चले जाइए, ईस्ट टू वेस्ट, अलग अलग तरीके के की थाली मिलेगी आपको, लेकिन वो पूरी तरह से लोडेड है आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का अच्छे से, मिश्रण, हाँ, yes. अच्छे से आपको मिक्सचर देने के लिए, जिसको हम स्क्वायर मील बोलते हैं। तो वो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का जो लोकल आपका जो भी स्टेपल डाइट है उसको खाइए। फैंसी चीज़ों के पीछे भागने का मतलब कोई नहीं ज़रूरत है, नहीं है yes, right. कि आपको अगर रोटी सब्जी अच्छी लग रही है वो खाइए, दाल चावल अच्छा लग रहा है वो खाइए, लेकिन जो पोर्शंस है प्रोटीन के, फैट के, कार्बोहाइड्रेट के, फ्रूट, सैलेड, ये सब आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ के आपको एडजस्ट करना है। एक्सरसाइजेस में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को फिजियोथेरेपी नहीं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल उनको कि क्या मैं योगा कर सकता हूँ, तो आई ऑलवेज इनकरेज येस, लेकिन वो आप फिजियो कीजिए या योगा कीजिए, किसी प्रॉपर टीचर के अंडर आप कीजिए। टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के ये चीज़ अप टू सर्टन लेवल येस, बट आगे नहीं। आप अगर गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो आपके लिए उसको एक कोई गाइडेंस चाहिए। एंड तीसरी चीज़ इसमें होती है वैक्सीनेशन। तो वी गिव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वंस अ ईयर, एंड न्यूमोकॉकल मतलब निमोनिया नहीं होने के लिए वाला वैक्सीन, इट इज़ वंस इन लाइफ टाइम, उसका एक 3 या 5 साल के बाद बूस्टर भी दिया जाता है। तो उसका उद्देश्य ऐसा है कि हम सबको साल में 3-4 बार तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, लेकिन तीव्र स्वरूप का फ्लू या निमोनिया होकर अपने ऊपर एडमिट होने का टाइम नहीं आए, जो इन लोगों में हो सकता है, सीओपीडी हो या लंग फाइब्रोसिस हो या कुछ सीवियर एस्थमेटिक्स हो, उनमें ऐसा हो सकता है। So vaccines can use as a preventive एज अ tool. प्रिवेंटिव थेरेपी तो Okay. सर्दी खांसी बुखार तो हो जाएगा, लेकिन एडमिट होने का टाइम अपने ऊपर Chances नहीं नहीं आना होंगे, चाहिए। right. ये सबसे ज़रूरी बात है, बिकॉज एक बार वो सीओपीडी एडमिट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, खर्चा तो अलग बात है, लेकिन जो हेल्थ नीचे आ जाती है वो वापस ऊपर या तो आती नहीं है, या आने के लिए, बीमार गिरने के लिए 4 दिन काफ़ी होते हैं और ऊपर आने के लिए 4 महीने लग जाते हैं। तो उसके लिए वैक्सीन्स, फिजियोथेरेपी एंड न्यूट्रिशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिंस वी आर डूइंग लंग ट्रांसप्लांट एट ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल इन ग्लोबल, आई कैन टेल यू कि हम हमारे सब पेशेंट्स को, तो हमारे पास 2 पेशेंट्स ऐसे थे, एक तो माझगांव डॉक में काम कर रहे थे, वहाँ पे सब जो हेवी मेटल्स रहते हैं, शिप बिल्डिंग एंड शिप ब्रेकिंग का जो भी सब सामान होता है, तो उसके चलते उनको जैसा पिजन से लंग फाइब्रोसिस होता है वैसा उनको इन सब के एक्सपोजर से हो गया था। एंड we had another patient, international patient coming from Seychelles to us. She's 33-year-old, and she had a disease called as cystic fibrosis, जिसमें लंग्स में लिटरली बचपन से छेद हुए रहते हैं और उसमें कफ जम जाता है और उसके वजह से बार बार इन्फेक्शन होना और हेल्थ कम हो जाना, So ये it हो just जाता है। get worsens. It just worsens. There is no treatment for cystic fibrosis, no medical treatment. You can maintain them at certain level, but finally lung transplant is the only option. तो इन दोनों पेशेंट्स में, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स, हम कहते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट करके हम तो आपको सिर्फ पुराने ख़राब लंग्स बदल के नए हम दे रहे हैं आपको, लेकिन ये प्रोसेस बहुत पहले चालू हो जानी चाहिए फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन के हिसाब से।
कि आप फिजियोथेरेपी करके आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, बाकी मसल्स को मजबूत कीजिए, ओवरऑल Collateral हेल्थ breathing, बनाइए, yeah. ताकि आप लंग ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर एंड बाद का जो रिकवरी है वो अच्छे से उसको झेल पाओगे. Correct. तो ये बहुत ही ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन. And very important topic that I want to touch is Sure. that usually in conditions like panic attacks, we see कि breathlessness जैसे symptoms होते हैं. होते हैं. तो in such patients कैसे breathlessness manage करना है, या फिर do you have any tips that how to manage anxiety? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैनिक अटैक है, ये कंफर्म होते होते 2-4 अटैक पहले हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर का फर्स्ट ये है कि मैं कुछ कार्डियो रेस्पिरेटरी, कुछ हाँ, ऐसी बीमारी जो है जो मिस नहीं होनी चाहिए, रूल आउट कर देते रूल हैं आउट सब कर कुछ. देना हाँ. है. तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सब होके जब पता चलता है एक्सरे कि कुछ भी नहीं है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, तो फिर आप उसको कंफर्म कर दिए कि उसको पैनिक अटैक है या एंजाइटी अटैक है. तो एक बार वो कंफर्म होने के बाद काफ़ी बार पेशेंट में एक्सेप्टेंस ही नहीं रहता है. दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ एक्सटर्नल रीज़न कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं है, मुझे कुछ होगा, आप ढूंढो. तो वैसा नहीं होता है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायफ्राम के बारे में हमने चर्चा की. तो सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि आप पीठ पे लेट जाइए और एक छोटी सी किताब आपके पेट के ऊपर रख दीजिए एंड ऑब्जर्व द मोमेंट. आप जब भी सांस लेते हो तब किताब ऊपर जानी चाहिए, सांस छोड़ते हो तो किताब अंदर जानी चाहिए. दैट इज़ द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. ओके, सो ये तब करना है जब पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द पैनिक पैनिक अटैक. अटैक. बट अभी ये उस वक्त तो ऑफिस में बैठा है और पैनिक अटैक है, Yeah. तो लेट के किताब नहीं तो नहीं कर रख पाएगा. सकता. यस. तो ये तो सिर्फ फोकस लाने के लिए है कि हाँ, ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है. फीडबैक. तो जब ऐसा हो रहा है तो ऑफिस में बैठे बैठे भी वो व्यक्ति अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, अगर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेथ रेट कम हो जाता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे आ जाता है, ब्रीदिंग अपनी डीप हो जाती है, लंग स्पेसेस ज़्यादा अच्छे से खुल के ऑक्सीजनेशन अच्छा होके ऑटोमेटिकली वो अटैक सेटल हो जाता है. तो फिर ऐसे कोई केसेस हुए हैं जिसमें पैनिक अटैक की वजह से सीवियर ब्रेथलेसनेस हो गए एंड देन पेशेंट हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड? तो काफ़ी बार होता है ऐसे. काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि जब पहली बार पैनिक अटैक होता है तो ना पेशेंट को पता चलता है, ना डॉक्टर को भी कंफर्म करना होता है कि ये एक्चुअली पैनिक अटैक है. जब भी एग्ज़ाम हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं तो हमें काइंड ऑफ 90% ऑफ द टाइम मालूम पड़ता है कि ये पैनिक अटैक है. बट व्हेन इट इज़ अ फर्स्ट इंस्टेंस यू हैव टू स्टिल इन्वेस्टिगेट, एक्सरे ईसीजी करके रूल आउट करना है कि लंग रिलेटेड या कार्डियक रिलेटेड कुछ नहीं है. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट कैजुअलिटी या इमरजेंसी रूम में आ जाते हैं, कुछ इमरजेंसी मेडिकेशन भी देना पड़ता है या कभी एक आध दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है, ये हो जाता है. बट फिर उनसे काउंसलिंग करके कभी कभी हमें साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है. समटाइम्स दे नीड सम काइंड ऑफ एंग्जियोलाइटिक फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ. बट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज़ वन थिंग. हैविंग गुड ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग बिफोर यू लीव योर हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल improve your immunity and overall the way you think, the way you function, it really improves. Maybe having little light dinner in the night, थोड़ा सा कम खाइए. ब्रेकफास्ट सबसे हेवी रहना चाहिए, उससे 25% कम लंच होना चाहिए और ब्रेकफास्ट का 50% डिनर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है. तो उस तरह से अगर फॉलो करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर से यू आर 25-year-old और 30-year-old पर्सन एंड नाउ डायग्नोज की पैनिक अटैक ही था और कुछ नहीं है, यू शुड अंडरटेक एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. आप जॉगिंग के लिए जाइए, स्विमिंग जाइए, साइकिलिंग कीजिए, जिम में जाइए, सूर्य नमस्कार, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट यू वांट, एंड अ हॉबी दैट विल कीप योर माइंड एंगेज्ड एंड पॉजिटिव. आप पोएट्री कर रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हो, म्यूजिक फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो दैट इज़ अ वे टू हैंडल, एंड इट एज इट कम्स इट गोज अवे. एंग्जाइटी या पैनिक अटैक ये चीज़ काफ़ी टाइम नहीं रहती है, वो जैसे आई हुई रहती है, वो 1-2 साल में अपने आप वो चली जाती है. उस व्यक्ति को भी बाद में पता चलता है अरे मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा है सडनली. तो इट इज़ लाइक दैट. So before we wrap up, let's just talk more about how can, I mean, inhalers like medical treatment for asthma और COPD. Right. जैसे कि हमें पता है कि आज inhalers यूज़ करने के लिए most of the population is very scared actually कि कैसे यूज़ करना है या इससे आदत तो नहीं हो जाएगी. देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट इनहेलर. अभी ये जो इनहेल मेडिकेशन रहता है अस्थमा या COPD के लिए, उसमें कॉम्बिनेशन रहता है जनरली मेडिसिन्स का, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड.
ब्रोंकोडायलेटर मतलब जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एयरवे नैरो हो रहा है, उसका डायमीटर कम हो रहा है, तो उसको खोलने के लिए जो दवा दे रहे हैं उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। एंड अंदर जो एयरवे के ऊपर जो अंदर म्यूकस बैठ गया है या स्वेलिंग आ गया है उसको कम करने के लिए रहता है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कुछ लोगों में कुछ देर के लिए समझो 3-4-6 महीना 1 आध साल लेना पड़ता है, कुछ COPDs में तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ लंग्स में काम करते हैं, इनका शरीर में किधर भी कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं रहता। तो नो साइड इफेक्ट्स? Zero side effect. There is no safer medicine than this. There are enough studies which have proven for last 20, rather more than 30 years, कि even in pregnant women, those who are having asthma, कंसेप्शन हो गया है, अभी डिलीवरी होना है, तो इनहेलर्स ही उनको स्टेबल रख पाते हैं। एंड देर आर zero side effects going to the child, to the baby. Even in now, thanks to the pollution, we are seeing a lot of babies, neonates or toddlers coming with symptoms of asthma. Inhaler is the best way to treat them. It does not affect the growth. In fact, it helps improve the lung health, so that lung का जो growth होना होता है 8 साल की उम्र तक वो अच्छे से हो जाता है। नहीं तो ये बच्चे फेलियर टू थ्राइव कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब हाइट बढ़ती नहीं है, वजन बढ़ता नहीं है, बार बार बीमार गिरते हैं, स्कूल मिस हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सब हम टाल सकते हैं ओनली एंड ओनली विथ इनहेल मेडिकेशन, राइटली गिवन ड्रग, राइटली गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, डोसेस एंड ड्यूरेशन, ये सब ठीक से देने से पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, एक्चुअली ये डिस्कशन से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है हमें। सो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल अस टू आवर व्यूअर्स? First of all, thank you so much for calling me here. It was great interacting with you on so many aspects of respiratory medicine. मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, श्वास एव जीवनम, ब्रीदिंग इज़ लाइफ। करेक्ट। तो हमें हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स पूरे हेल्थ की केयर लेनी चाहिए, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इज़ द एंटायर हेल्थ एंड सोशल वेलबींग ऑल्सो, बट with proper lifestyle modification, avoiding indoor pollutants, doing regular breathing exercises or any kind of exercise which will help your entire system, एक proper square meal, अच्छा आहार लेना और ज़रूरत पड़ने पे करेक्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेना, और जो करेक्ट तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। डू नॉट check your symptoms or try to diagnose things on internet. So internet has information, but your doctor has the knowledge, and there is a difference between information and knowledge. Yes. That's all. Thank you for this insightful session. Thank you so much. टू आवर व्यूअर्स, रिमेंबर, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो डोंट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर वेल-बीइंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर पेज ऑन Instagram at Mankind Specialities for more insightful conversation on various health topics. And if you have any questions, reach out to us on social media. Until then, stay informed, stay healthy and breathe easy.